پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا, پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے. کرپشن پر پردہ ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے, این آر او دینا مقصد نہیں ہے, کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے. نیب قوانین میں ترمیم کا مقصد کسی کی کرپشن کو تحفظ دینا نہیں, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہی مطالبہ تھا. اپوزیشن ہماری نیت پر شک نہ کرے, کوئی تجویز دینا چاہتی ہے تو ضرور دے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا گفتگو. فردوس عاشق اعوان بھی بولیں کہ اپوزیشن کا نیب ترمیمی آرڈیننس پر سیاست کرنا افسوسناک ہے. وزیر اعظم کا دامن صاف ہے, انہیں احتساب کا کوئی خوف نہیں. حکومت نے آصف زرداری کے بیانیے کو مان لیا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے. نیب ترمیمی آرڈیننس پر بلاول بھٹو کا رد عمل. ٹویٹ کیا کہ حکومت یک طرفہ اور انتقامی کارروائیوں کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرے. انسداد بدعنوانی قوانین کو مضبوط اور بہتر کیا جائے. نیب قوانین میں ترمیم کے بعد پہلا بڑا ایکشن. آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس ایف آئی اے کو ارسال کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق کرپشن کی تحقیقات کا اختیار نیب کے پاس نہ ہونے کے باعث کیس ایف آئی اے کو بھیجا جائے گا. پشاور میں بی آر ٹی تحقیقات. ایف آئی اے نے پی ڈی اے کے 4 سابق افسران کو طلب کر لیا. 2 سیاسی شخصیات کو بھی بیانات قلم بند کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے. ایف آئی اے نے ٹھیکیدار سے بھی تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. جمہوریت کے علمبرداروں کو نوٹس لینا چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا رد عمل. مزید بولے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے تیار تھی, لگتا ہے کہ بھارت نے دباؤ ڈالا. افغانستان کی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر قابو پانے کی یقین دہانی. کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں 55 روز بعد کاؤنسلر سروسز بحال. ویزا کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا. پاکستان نے اپنے سفارتکاروں اور عملے کو مسلسل ہراساں کرنے پر 3 نومبر کو کاؤنسلر سیکشن بند کر دیا تھا. خوبصورت سرزمین قدرتی حسن سے مالا مال ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. مزید لکھا کہ ملک میں پوشیدہ عجائبات اور غیر تسخیر شدہ سیاحتی مقامات ہیں, یہاں سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ میں پنجاب اور کے پی حکومت کو ہدایت کی کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص شیلٹر کے بغیر نہ رہے. جو پناہ گاہ میں نہیں ان کو بھی کھانا اور عارضی پناہ گاہ فراہم کی جائے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر. بنیادی شرائط پورا کرنے کے لیے قانون سازی دشوار ہو گئی. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کو لازمی قرار دیا. منی لانڈرنگ روکنے کے لیے قانون سازی اور کرپشن کے خلاف قوانین کا اثر نو جائزہ بھی بنیادی ہدف ہے. سردی کے ساتھ گیس بحران بھی شدت اختیار کر گیا. پنجاب میں انڈسٹری اور سی این جی سیکٹر کو گیس بندش کے باوجود شارٹ فال جاری. بیشتر علاقوں میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے. نان بائی بھی لکڑیاں جلا کر روٹیاں اور نان لگانے پر مجبور. ادھر کراچی سمیت سندھ میں سی این جی اسٹیشنز پر گیس کی فراہمی شام 7 بجے تک جاری رہے گی. ملک میں کڑاکے کی سردی نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا. زیارت میں درجہ حرارت -60 ڈگری ریکارڈ. مالم جبہ، چترال، ایبٹ آباد، گلگت، ہنزا اور سکردو کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند کا راج رہا. وادی کالام میں سنو جیپ ریلی کا آغاز. برف سے ڈھکے ٹریک پر ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان.
महू डंड से कालाम तक होने वाली रेस में मर्दों के साथ ख्वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए दिलकश नज़ारों का लुत्फ दुबाला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुई गैस का मसला हल क्यों नहीं हो रहा, और साथ ही साथ आज के इस बुलेटिन में डिस्कशन होगी इस बात पर भी कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन क्यों बिलबिला रही है। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी की बात, जो कहते हैं किसी को रियायत या NRO देना हमारा मकसद ही नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का नैब ऑर्डिनेंस का दिफा, कहते हैं हुकूमत ने अवाम को खौफ से निकालने के लिए प्रपोजल दिया। अपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस का मुताला किए बगैर तबसरा शुरू कर देती है। सिंध हुकूमत बयानात की बजाय विफाक के साथ मिलकर गैस का मसला हल करे। गैस के मामले को सुबाइयत का रंग ना दिया जाए। मुल्क के तीनों सतून अपनी हुदूद में रहेंगे तो मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। इदारों में कोई तसादुम नहीं, हर इदारे की अपनी हुदूद व क़यूद हैं। किसी को रियायत या NRO देना हमारा मकसद नहीं। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। एक तरफ कहते थे कि जी मईशत जो है उसका पहिया नहीं चल रहा, और इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क का मसला है वो माशी बहरान है। माशी बहरान के लिए हुकूमत इक़दामात उठाती है, मसाइल को दूर करने के लिए कदम उठाती है, तावन की दरख्वास्त करती है, रुकावटें डालते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, करप्शन पर पर्दा डालना हमारा मकसद नहीं है, NRO देना मकसद नहीं है, किसी को रियायत देना मकसद नहीं है। अगर आप समझते हैं कोई उसमें हुक्म रह गया है तो मिल बैठकर उस पर उसको दूर कर लेते हैं। गैस का इस वक्त कमी है, बिल्कुल है। अब उसको दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है। नीयतों पे शक न कीजिए और इसको सियासत की नजर न कीजिए। हुकूमती मौक़िफ़ तो आपने जाना। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल सामने आया है। बिलावल ने ट्वीट किया है कि हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। मजीद लिखा, इंसदाद बदउनवानी कवानीन को मजबूत और बेहतर किया जाए। एक तरफा इंतकामी कार्रवाइयों के बजाय हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने यह ट्वीट किया है, कहा इंसदाद बदउनवानी कवानीन को मजबूत किया जाए और बेहतर बनाया जाए। हुकूमत इस मौक़िफ़ को मान चुकी है कि आसिफ अली जरदारी ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद का केस FIA को अरसाल करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक 29 जाली अकाउंट्स का केस तहकीकात के लिए FIA को भिजवाया जाएगा। फ्रॉड की तहकीकात का इख्तियार नैब के पास न होने के बायस केस FIA को भेजा जाएगा। नैब से केस अब ले लिया गया है और ये FIA को केस अब भेजा जाएगा। 29 जाली अकाउंट्स का केस तहकीकात के लिए FIA को भेजा जाएगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद का केस FIA को अरसाल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 29 जाली अकाउंट्स का केस तहकीकात के लिए FIA को भिजवाया जाएगा। और अब बात फिरदौस आशिकवान साहिबा की। आए रोज नैब के खिलाफ मुहाज खोलने वाले नून लीगी तर्जुमानों का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सियासत करना अफसोसनाक है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने यह ट्वीट किया, कहा वजीर आज़म इमरान खान का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का कोई खौफ नहीं। सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। मजीद कहा इमरान खान के बदतरीन सियासी मुखालिफ भी उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने में नाकाम रहे और रहेंगे। इमरान खान का करप्शन के खिलाफ जहाद भरपूर कुव्वत से जारी है। नैब का काम मेगा करप्शन स्कैंडल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना है और ये काम नैब और भी कुव्वत से अंजाम देगा। फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट किया, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान का दामन साफ है। आपको बताएं कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स शेल्टर के बगैर ना रहे, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी कर दी। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा सर्दी के मौसम में तमाम अफराद को शेल्टर और खाना फराहम किया जाए। पनाहगाहों में सहूलियात हासिल ना करने वालों को भी खाना फराहम किया जाए। जिनके लिए पनाहगाहों में जगह नहीं उनके लिए आर्जी पनाहगाहों का बंदोबस्त भी किया जाए।
नरेंद्र मोदी की सोच खुलकर सामने आ चुकी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत ने एलओसी पर 5 मकामात से बाढ़ को काटा। भारत की जानिब से बराहमोस मिसाइल नस्ब करने का मकसद क्या है? मौजूदा हालात में भारत के साथ ज़हनी तौर पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं, भारत अंदरूनी खलफशार को छुपाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। ओआईसी फोरम पर मसला कश्मीर और मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। मलाइशियन वजीर आजम की नीयत पर शक करते हैं, नहीं करेंगे। गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हालात में भारत के साथ ज़हनी तौर पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। भारत जल रहा है, दुनिया देख रही है। भारत ने जो इकदामात किए उससे मोदी की हिंदुत्वा सोच बेनकाब हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुतनाज़ शहरियत बिल पर भारत मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुका है। हर शहर में एहतजाज जारी है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत को छुपाया गया, लेकिन क्या अब भारत अपने मुल्क में कर्फ्यू लगाएगा? जो जुल्म और बर्बरियत वहां हुई वो लोगों की टेलीविजन स्क्रीन्स पर उस तरह नुमाया नहीं हो सकी। इस वक्त भारत बिल्कुल तकसीम दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी कलाई खुल गई है। उनकी जो हिंदुत्वा सोच है वो बेनकाब हो गई है। और आज भारत के अंदर मुसलमानों के साथ साथ पारसी, ईसाई, सिख, दलित और बहुत सी कम्युनिटीज जो हैं वो मिलकर एहतजाज कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खदशात का इजहार किया। कहा कि भारत ने एलओसी पर 5 मकामात से बाढ़ को काटा है। एलओसी पर ब्राह्मोस मिसाइल की तनसीब के इकदामात का क्या मकसद है? इन तमाम हालात के बाद हम किसी भी सूरत भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन मुझे इसलिए उस पर मुझे तशवीश है क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। 5 जगहों पर हमारी इतलात के मुताबिक एलओसी पर उन्होंने बाढ़ को काटा है। ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वहां नस्ब किए हैं, स्पाइक मिसाइल्स जो हैं वहां नस्ब किए हैं। मकसद क्या है उनका? पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है कि इन हालात में और इन इक़दामात में जो आपने उठाए हैं, पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ बैठने के लिए ज़हनी तौर पर तैयारी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने मुतनाज़ कानून और कश्मीर में मुजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई है। सऊदी हम मनसब से कहा, भारतीय मुतनाज़ बिल के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। वजीर खारजा का कहना था कि मलेशिया के वजीर आजम की नीयत पर शक करते थे, ना करते हैं ना करेंगे। मलेशियन वजीर आजम की सोच मुस्बत थी। तुर्की और मलेशिया ने हमारे मौक़िफ़ को सुना और समझा। गलत फहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी सिराज आफरीदी ने फाटा से मुंतखब सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाका साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फाटा से मुंतखब होने वाले सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पश्तूनों ने अपने खून और जानों की कुर्बानियाँ दी। कबायलियों ने पाक फौज के शाना बशाना 20 साल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और फतह हासिल की। ताज मोहम्मद आफरीदी ने कहा, आज फाटा की आवाज़ उठाने के लिए असम्बलियों में नुमाइंदगी मौजूद है। फाटा का इंतजाम हो चुका। हुकूमत की जानिब से 100 बिलियन के फंड्स का वादा किया गया है, जिससे तालीम, सेहत और दीगर शोबाजात में बेहतरी आएगी। हमारी आवाज़ दुनिया में जो बनता, आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी उसका आवाज़ उठाने के लिए हमारे मेंबरान मौजूद हैं। और जो मसाइल के ऊपर है माशाल्लाह इंतज़ाम के बाद जो एक कमेंटमेंट हो चुका है, अभी तक तो हुकूमत उसको पूरा नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है कि 100 बिलियन जो हमारे कमेंटमेंट है फाटा के अवाम के ऊपर लगना है, वो लगना शुरू हो जाएगा। ताज आफरीदी का मजीद कहना था, फाटा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। अब बच्चों की तालीम और असातिज़ा की कमी को पूरा किया जा रहा है।
कुछ ऐसे चीज़ें रह गया है जो इसको साफ़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप हमारे चीफ आर्मी स्टाफ की बात भी नोट कर लें तो उन्होंने भी अपनी स्पीचों में कहा है कि कुछ कमी है जो हमने पूरा करना है आवाम की मदद से। तो अब आवाम में ये कुव्वत आ गया, आवाम इसके ख़िलाफ़ उठते और आवाम हुकूमत को निशानदेही कराते, तो उस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला जो कमी भी है वो साफ़ हो जाएगा। पश्तून सोसाइटी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रियाज महमद ने कहा वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ते रहेंगे। हमारे आबा व अजदाद की तारीख़ है, आज से 100 साल पहले भी हमारी तारीख़ थी, 200 साल पहले भी तारीख़ थी। हम जिस मिट्टी पे रहते हैं उस मिट्टी के लिए अपना सर कटवाते हैं, उस मिट्टी पे अपनी जान देते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी के लिए पश्तूनों की बहुत कुर्बानियाँ हैं। 1947 के बाद से जितनी कुर्बानियाँ बाकी कौमों ने दी हैं, पश्तूनों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज के दौर में अल्लाह के फजल से और आप लोगों के और ख़ासकर मीडिया की मदद से जो फाटा को ज़म किया गया है और तमाम पार्टियों की जानिब से KPK में, हम इस फैसले को सराहते हैं और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। तकरीब के दौरान ताज मोहम्मद आफरीदी, बिलाल आफरीदी और शफीक शेर आफरीदी को उनकी खिदमत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। दावत इस्लामी बरतानिया ने विल्सडन ग्रीन जामे मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में पुरनूर महफिल का इनेकाद किया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी ने मुआशरती बुराइयों के हवाले से नसीहत आमोज बयान किया। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके विल्सडन ग्रीन की जामिया मस्जिद में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रूहानी और इल्मी महफिल सजाई गई, जिसमें दावत इस्लामी के मुबल्लिग और निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी ने गीबत, हराम और मकाम जहन्नम के उन्वान से खिताब किया। इस मौके पर हाजी इमरान अतारी का कहना था कि गीबत को अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक में मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ कहा है। गीबत ऐसा फेल है जो इंसान की नेकियां खा जाता है। निगरान शुरा का कहना था कि ऐसी बाबरकत महफिल में बयान को संजीदा लेकर उसे अमली जिंदगी का हिस्सा बनाए। हिट की जाती है बात ना। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी को गीबत करते हुए सुना तो फरमाया गीबत से बचो, क्योंकि ये इंसान नुमा कुत्तों का सालन है। बाबरकत महफिल में शरीक खालिद अतारी और हसन अतारी का कहना था कि ऐसी महफिल के जरिए इस्लामी तालीम और तरबियत हासिल करते हैं जो अमली ज़िंदगी में मुफीद साबित होती है। उनका कहना था कि मल्टी कल्चर सोसाइटी जिसमें माशरती बुराइयां मौजूद हों, वहाँ इस तरह अच्छाई की दावत ज़िंदगी बदल देती है। अच्छे लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए जमा होते हैं। अल्लाह इनका आना भी कबूल फरमाए। पर होता यह है कि जब हम यहाँ से जाएँ तो जिस मैसेज को हमने सुना होता है, माशाल्लाह एक इश्क़ रसूल का पैगाम होता है, क़ब्र आखिरत बेहतर करने का पैगाम होता है, तो बेसिकली हम अपनी तबीयतों में संजीदगी पैदा कर इसको प्रैक्टिस कर लें। नमाज का कहा गया है तो नमाजी बने, सच बोलने का कहा गया सच बोलें, हुकूक लोगों के अदा करने का हम पैगाम देते हैं तो वो अदा करें। इस तरह के महाफिल में आएंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे तो इल्म दीन सीखेंगे, इल्म दीन सीख के इस्लामी तरबियत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और यही फिर इस्लामी तरबियत हासिल करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये सोसाइटी के अच्छे शहरी बनेंगे। We have the executive chairman of the Dawat Islami Nigrani Shura, Haji Imran Attari. He's on a visit to the UK at the moment, and his purpose, main aim of this visit is to rectify the people in this country and help them. In particular, he's talking about family issues and how we bring up our children, the problems that our children are facing, drugs, alcohol, adultery, all of these crimes that our youth are facing, knife crime. And inshallah today I think he's going to be talking about backbiting, which is again a cancer of society. दावत इस्लामी की जानब से मुनक़दा इस महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की, जिनमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल थे। इस मौके पर शुरका ने ईमान अफरोज बयान सुनकर अपने ईमान को ताज़ा किया। जामिया मस्जिद विल्सडन ग्रीन में कसीर तादाद में शरीक लोगों ने अपने साथ बच्चों को लाकर उन्हें इस्लामी तालीमात से भी रोशनास कराया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, UK। तहरीक मिनाजुल कुरान और जामे मस्जिद बिलाल डंडी के ज़ेर एहतमाम महफिल हुस्न किरत का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कारी हजरात ने शिरकत की और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत कुरान पाक से महफिल पर वजद तारी कर दिया। तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
منہاج القرآن اور جامع مسجد بلال ڈنڈی کے زیر اہتمام محفل حسن قرات کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے عالمی شہرت یافتہ قاری الشیخ نثار احمد نعیمی نے مسحور کن انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ محفل سے جامع مسجد بلال کے خطیب الشیخ محمد عدیل القاسمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز صرف قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی موقع سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا موقع عطا فرماتا ہے، اس پر رب کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان سر بر سجود رہے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے، جو موقع ملے، جیسے جیسے موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کیا کی۔ دیگر علماء کرام اور شرکاء نے کہا، اللہ کے کلام کے ورد سے حقیقی معنوں میں دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ بندوں کہاں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج امت مسلمہ جس افلاس کا، جس مصیبت کا شکار ہے، اس کا واحد حل قرآن پاک سے جڑانا ہے۔ تقریباً پورے یو کے اندر اور اسکاٹ لینڈ گلاسکو کے اندر، ڈنڈی کے اندر یہ قرآن کریم کا پیغام ہر جگہ ہم نے پیش کیا، اور اللہ کریم نے یہ سعادت نصیب کی کہ مسلمانوں کے سامنے، آشکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور بہت ہی لوگ محظوظ ہوئے اور ہمیں بھی بہت ہی سکون ملا۔ علامہ عدیل قاسمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے منفرد انداز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ آخر میں پاکستان اور مسلم برادری کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ کیسر حبیب، 92 نیوز ڈنڈی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹیری بیکر کا کشمیری عوام کے حق میں بیان، کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانا دراصل جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ امریکی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ پاکستانی تمغہ امتیاز یافتہ ڈاکٹر آصف چودھری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کشمیر کی آواز امریکی ایوانوں تک پہنچائی۔ I want to thank Dr. Mahmood for bringing people together to talk about the urgencies of the human rights violations going on in Kashmir right now. We are a nation that stands for values, whether it's freedom of expression, whether it's freedom of speech, and to be silent when challenges are going on, whether they are in Kashmir or whether they're with Uyghurs in China, we must speak up with a collective voice for human rights and for the well-being of all peoples. It's actually a service to democracy when people are not silent and speak up about values. So thank you very much for this conversation we just had. And I will continue from my official position, and all of us as citizens have an obligation to speak up. So let's continue to do that. گلاسگو میں پاکستان پیپلز پارٹی اسکاٹ لینڈ کی طرف سے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 12ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ ملک خالد بارسی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
ग्लासगो में बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। तकरीब में पीपी के जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड चौधरी अब्दुल मजीद थे। इस मौका पर शुरका और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान में हकूक़ी जमहूरियत की बहाली के लिए भुट्टो ख़ानदान ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे बाप जो है वो उसको फांसी दे दी गई, सियासी तौर पे कत्ल कर दिया गया। माँ जो है वो जेल में है, भाई जो है वो जलावतन है, और फिर वो एक खातून जो है वो अपने मुल्क के लिए वो कहती है कि मैं आखिरी सांसों तक लड़ूंगी इन ताकतों के ख़िलाफ़ और अपने मुल्क को, गरीब आवाम को उनके हकूक़ दिलाऊंगी। उनको ये भी मालूम था कि मुझे शहीद किया जाएगा, लेकिन वो इतनी दिलेर निडर सियासतदान थी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत ला के रहूँगी। वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, उसने अपने मुल्क को सर्व किया है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके कातलों तक पहुँचा जाए। काफ़ी लोग गैदर हुए हैं। बीबी की बड़ी खिदमात हैं जमहूरियत के सिलसिले में। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और जन्नत में उनको जगह दे। शुरका की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा गया और इस अज़्म का आदा किया गया कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान में अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। तुर्की में कश्ती के हादसे में जवाहक 2 पाकिस्तानियों का ताल्लुक सियालकोट और नारोवाल से है। तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम मरने वालों के अहल खाना से राब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। तफसीलात के लिए देखते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने के काउंसलर उमर सदीक के मुताबिक कुछ रोज पहले तुर्की में कश्ती के हादसे में जाँ बहक होने वालों में 2 पाकिस्तानी शामिल हैं। उनकी शनाख्त नारोवाल के महल्ला चरागपुरा के मोहसिन रजा और सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अतीक के नाम से हुई है। सफारती अमले के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से रब्ता किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक दीगर पाकिस्तानियों को मामूली इलाज मुआलजे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक होने के बायस वो अभी तक अस्पताल में जेर इलाज हैं। कुछ रोज पहले तुर्की के मशरकी सूबा के एक झील में कश्ती के तसादुम में 2 पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। कश्ती पर 71 अफराद सवार थे, जिनमें से 23 पाकिस्तानी थे। जख्मियों के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए खसूसी नंबर जारी कर दिए गए हैं। अंकारा में उमर सदीक से 009055138499 पर, जबकि इस्तांबुल में प्रोटोकॉल असिस्टेंट आमिर बरलास से 009055683413 पर रब्ता किया जा सकता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बर्बरियत से मुतासर होने वाले कश्मीरियों की फलाह के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम इंस्पायर वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फलाही इदारे के बानी मेंबर मलिक मीर जमान खान की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। वेलफेयर फाउंडेशन ने बानी मेंबर मलिक मीर जमान खान के आज़ाज़ में ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया। रेफरेंस में कश्मीरियों के लिए गरां कदर खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मेहमान खसूसी साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मलिक करामत हुसैन थे। उन्होंने तंजीम के फलाही कामों को सराहा और अपने ताउन का यकीन दिलाया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मलिक करामत हुसैन ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान की साबिका हुकूमतों को भी तजवीज़ दी थी और अब इमरान खान को भी कहते हैं कि LOC पर बुलेट प्रूफ बंकर बनाए जाएं ताकि दुश्मन की इश्तिआल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मैं पाकिस्तान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें भी मैंने कहा था, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी उसमें भी मैंने कहा था, अब इमरान खान की जनाब गवर्नमेंट में उसमें मैंने भी ये कहा था कि आप LOC जो है ये पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ना हमारी डिफेंस लाइन है कि वहाँ पे आबादी जो है वहाँ पर रहेगी तो हमारी जो फ़ौज है वो उनके साथ जनाब दिल खोल कर जनाब जो है ना दुश्मन से मुकाबला करते हैं। अब वहाँ पे इतनी गोलाबारी हो रही है तो मैंने उस वक्त ये तजवीज़ दी थी, वहाँ देखें मैंने बड़ा मजबूत बैंकर इन लोगों के लिए बनाया जाए। LOC पे बैंकर, फर्स्ट एड और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने नहीं की हैं।
फलाही तंजीम के चेयरमैन इमरान हमीद ने LOC पर किए जाने वाले फलाही कामों के हवाले से आगाह किया। डिफरेंट हमारे चैरिटी मेंबर्स हैं, उनके थ्रू हमने वो कलेक्शन करके आप THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जाकर रब्ता करें। जब वो मेडिसन 10 विक्टिम्स तक रहती हैं तो हमें उसको टॉप अप ही करते हैं, और आप आज भी वहाँ पड़ी हुई हैं। और आज मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को भी मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह वो भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है। शुरका ने कहा फलाही तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय फौज की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं तंजीम के MD साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बिलखुसूस मैं और मेरे बड़े भाई मेरे कायद मलक अहमद साहब हमने भरपूर तरीके से पहले भी साथ दिया है, आइंदा भी देंगे और देते रहेंगे। मैं इसके लिए स्पेशल अपने इमरान हमीद मलिक साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत तरीके से इस तंजीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो गरीब तलबा और तलबात हैं जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, किताबें या बैग्स वगैरह जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अरेंज कर रहे हैं। इंस्पायर वेलफेयर फाउंडेशन, इसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की करें। इजलास में आज़ाद कश्मीर से आई कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। स्पेन के शहर स्बादल में महाजरीन के लिए काम करने वाली मकामी फेडरेशन की 10 साला कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी इमिग्रेशन ओरेवल अमारोस खास तौर पर शरीक थे। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में मौजूद गरीब उल वतन मुहाजिरीन के मसाइल और उनके हल के लिए इंसानी हुकूक की तंजीमें, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और मुतअद्दिद फेडरेशन सरगर्म अमल हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरियात जैसे खुराक, कपड़े और रिहाइश से लेकर मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी तक अपना अपना किरदार निभा रही हैं और अपनों से दूर परदेशियों की जिंदगियों में सहूलियात फराहम करने के लिए अपना अपना हिस्सा शामिल कर रही है। ऐसी ही एक फेडरेशन स्पेन के शहर सबादिल में कायम हुई, जिसे फेडरेशन दिल बाईस का नाम दिया गया था। ये फेडरेशन गैर मुल्कियों को रिलीफ फराहम करने, उन्हें नए मुआशरे में जम होने, अपना किरदार अदा करने और तरक्की की नई राहें तलाश करने में न सिर्फ मुआवन और मददगार साबित हुई, बल्कि नए प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ सेशंस के जरिए मुस्तकिल आगाही का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। फेडरेशन की 10 साल कारकर्दगी पर सबादिल के सिटी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अफराद, फेडरेशन के ओहदेदारान और वर्कर शरीक हुए। सेक्रेटरी इमिग्रेशन ओरियोल अमारोस खास तौर पर इस तकरीब में शरीक हुए थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सुफियान यूनुस और शहजाद वड़ाइज कर रहे थे। 10 साल तकरीबात में हम उन दोस्तों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो हमारे साथ इस लॉन्ग मार्च में चले थे। उसके अलावा इस अरसे में जिन जिन लोगों ने हमारी फेडरेशन, जिसका नाम है फेडरेशन दे एसोसिएशन दे इमिग्रेंट दिल बाईस, उसका मुख्तसर नाम 5 भी है, तो 5 के साथ जिन लोगों ने ताउन किया था, आज हमने उनको एक इनाम भी दिया है एक तराजू की शक्ल में, जिसका मकसद के खुशतीसिया इंसाफ हर एक के लिए। फेडरेशन दिल बाईस जो है ये तारकीन वतन के हकूक़ के लिए काम करती है। ऐसा जब कोई कानून बनता है जैसे तारकीन वतन के हकूक़ जो है मजरूह हो रहे हों या उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हों, तो उसमें ये आवाज़ अपनी उठाती है, सबको इकट्ठा करती है और उन मसाइल को जो है हल करने के लिए, और कानून साजी ऐसी जो हमेशा नरम हो, लचक रखती हो तारकीन वतन के लिए, उसमें मुआवनत का किरदार अदा करती है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को खुसूसी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। शाहिद अहमद शाहिद और 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी सेनेट पीटर्सबर्ग के ज़ेर-ए-एहतमाम 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह मनाई गई, जिसमें मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं मॉस्को से शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फरूक खान होती और डायरेक्टर आसिफ सदीकी की जानिब से 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और 92 न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान स्टानिस्लाव कार्लिव और सेंट पीटर्सबर्ग में सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के एजाजी काउंसलर अब्दुल रऊफ रिंद ने सालगिरह की तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था
कि 92 न्यूज ने इंतहाई कम मुद्दत में पूरी दुनिया में अपनी उम्दा सहाफत का लोहा मनवाया है और इसका सेहरा 92 न्यूज की पूरी टीम, मैनेजमेंट और दुनिया भर में फैले हुए नुमाइंदगान के सर है। Главное, чтобы больше было положительных. हमारी तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह तरक्की दे और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि 92 पाकिस्तान की वाहिद चैनल है जो रशिया में है। मैं 92 की दूसरे साल के सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 चैनल को। सालगिरह की तकरीब में शरीक अफराद का मजीद कहना था कि 92 न्यूज़ ने रूस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकारीब की कवरेज और उनकी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाया, जबकि रूस और पाकिस्तान के मौजूदा खुशगवार ताल्लुकात में भी 92 न्यूज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने मिलकर 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा। जी, सेंट पीटर्सबर्ग कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ से आज 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। ये मास्को के बाद दूसरा मौका है और पिछले साल भी पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग ने बड़े वालहाना अंदाज में सालगिरह मनाई थी और इनकी मोहब्बत है 92 न्यूज़ से और इंशाल्लाह हम भी 92 के बिहाव से वादा करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तान तक इनकी आवाज़ पहुंचती रहेगी और 92 न्यूज़ पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ हमेशा साथ खड़ा रहेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुमान, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।